ایک شخص نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہنے لگا میرے زندگی کا ایک عرصہ گزر گیا اسلام کے نالج کے بغیر، لیکن جس دن مجھے پتا چلا اسلام کی حقانیت کے بارے میں، اسلام قبول کرنے میں مجھے ذرا سی بھی دیری نہیں لگی، کیونکہ اسلام بالکل صاف اور شفاف ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی کنفیوژن میرے اندر میں نہیں رہا۔ ہاں، جب تک اسلام کا نالج مجھ تک نہیں پہنچا تب تک میں گمراہی میں رہا۔ جب اسلام قبول کر لیا تب اس کے سامنے دو راستے آ گئے، کیا مجھے شیعہ بننا چاہیے یا سنی بننا چاہیے۔ کہنے لگا کہ یہ کنفیوژن میرے لیے پچھلے کنفیوژن سے بہت بڑا تھا۔ اب چونکہ اس کے فرینڈ سرکل میں سارے سنی تھے، سنی اسکالر سے وہ ملتا رہا تو سنی بن گیا۔ جب وہ سنی بنا تو پھر وہ کنفیوز ہو گیا کہ کیا مجھے بریلوی بننا ہے، دیوبندی بننا ہے، کیا مجھے اہل حدیث بننا ہے، کیا مجھے اماموں کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اگر اماموں کو فالو کرنا ہے تو کون سے امام کو فالو کرنا ہے۔ گویا کہ اسلام تو سمجھنا بہت آسان ہے، اسلام کے سیکٹس کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور یہ حال صرف ان کا نہیں ہے، یہ حال ہم سب کا ہے۔ ہم جب کسی اسکالر کی بات کو سننے لگتے ہیں، چاہے وہ کتنی بھی صحیح بات کہہ رہا ہو، ہمارے ذہن میں پہلا سوال یہی آتا ہے کہ یہ کون سا مسلمان ہے۔ ایکچولی وی لو ٹو فائنڈ دا ڈفرنس rather to find the similarity۔ میں نے کئی سال کوشش کی ہے، الگ الگ فرقوں کے اسکالرز کے ساتھ باادب بات کر کے ریکویسٹ کر کے میں نے دیکھا یہ نا بہت زیادہ مشکل ہے، ایٹ لیسٹ اس جنریشن میں تو بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہم ان ڈفرنسز کو چھوڑ کے متحد ہو جائیں۔ پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب امام مہدی علیہ رضوان آ جائیں گے تب امت متحد ہو جائے گی، وہ ایک ایسا جھنڈا اٹھائیں گے جس جھنڈے کے نیچے ہر ایک شخص آ جائے گا irrespective of their school of thoughts۔ اب چونکہ اس بات پہ ہر کوئی متحد ہے کہ امام مہدی کے آنے کے بعد ہمارے بیچ میں کوئی سیکٹس نہیں بچے گا، ہم سب ایک ہو جائیں گے، ہم سب صرف مسلمان ہو جائیں گے۔ اب لوگ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا امام مہدی شیعہ ہوں گے یا سنی ہوں گے، یعنی ہم لوٹ کے وہیں پہ آ جاتے ہیں، ہماری سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی رہتی ہے۔ اب یہ سوال ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر امام مہدی شیعہ ہوئے تو سنی شیعہ کو فالو کرے گا، اور اگر امام مہدی سنی ہوئے تو شیعہ سنی کو فالو کرے گا، کیونکہ فالو تو ہر کوئی کرے گا۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام مہدی شیعہ ہوں گے یا سنی ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شیعہ اور سنی تھیولوجی میں امام مہدی کو لے کے تین میجر ڈفرینسز ہیں۔ پہلا ڈفرنس، شیعہ حضرات یعنی اہل تشیع حضرات کے نزدیک امام مہدی 12ویں امام ہوں گے۔ اگر آپ شیعہ کے امام والے کانسیپٹ سے فیملیئر نہیں ہے تو مختصراً میں یہ بتا دوں کہ شیعہ تھیولوجی کے حساب سے لیڈرشپ امامت کے طور پہ چلتی ہے، اور جو سب سے پہلے امام تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ امامت اہل بیت میں ہی چلتی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امام رہے، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے اور پھر ان کے بیٹے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا 11ویں امام تک۔ اور جو 12ویں امام ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے، یعنی فرسٹ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 12ویں اور آخری امام ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ رضوان۔ یہ شیعہ تھیولوجی ہے۔ اب اگر ہم سنی حضرات کے بارے میں سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی بلا شبہ ایک بہت نیک شخصیت ہوں گے، وہ اپنے وقت کے مجدد ہوں گے۔ اب اگر آپ مجدد ورڈ سے فیملیئر نہیں ہیں تو مجدد اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام میں ریوائول لے کے آتے ہیں، اور ہر 100 سال میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو مجدد کے مقام میں ہوتا ہے۔ ہر 100 سال میں دنیا میں ایک ایسا شخص ضرور پیدا ہوتا ہے جو علم اور عبادت کے اور اخلاق اور معاملات کے اعتبار میں بہت ہی زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اب امام مہدی علیہ رضوان بھی اپنے وقت کے مجدد ہوں گے، لیکن وہ پہلے کے مجدد کے جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ان سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ اور بہت ہی زیادہ اونچے مقام میں ہوں گے۔ دوسرا ڈیفرنس، شیعہ اسکالرز کے نزدیک امام مہدی علیہ رضوان آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں، یعنی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ امامت کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا اور 11ویں امام یعنی امام حسن العسکری رحمۃ اللہ علیہ تک چلتا رہا۔ اب یہ شخص مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے عباسی خلافت کے زمانے میں، یعنی کہ 846 AD میں یہ پیدا ہوئے تھے، صرف 28 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے تھے۔ ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ ان کو پوائزن دیا گیا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، واللہ عالم، لیکن ان کا بیٹا جو صرف 6 سال کا تھا وہ غار میں جا کے چھپ گئے، اور تب سے آج تک وہ حیات میں ہے، وہ زندہ ہے، اور اس صحیح وقت کا وہ انتظار کر رہے ہیں جب
अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म होगा और वो जाहिर हो जाएंगे। यानी आज से करीब 1200 साल पहले इमाम मेहदी अलैहि रिजवान पैदा हो गए थे। होके 6 साल की उम्र में वो एक गार में यानी कि गुफा में जाके छुप गए हैं और सही वक्त के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुन्नी स्कॉलर्स के नजदीक इमाम मेहदी अलैहि रिजवान बिल्कुल नॉर्मल बर्थ लेंगे और वो मदीना मुनव्वरा में बर्थ लेंगे। इवन 40 साल की उम्र तक उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वो इमाम मेहदी हैं। वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे होंगे, एक नेक लेकिन आम जिंदगी जी रहे होंगे। हत्ता कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक रात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिल को पाक कर देंगे और उनको तैयार कर देंगे। तीसरा मेजर डिफरेंस ये है कि अहले तशय्यो हजरात के स्कॉलर्स के नजदीक इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के कॉन्सेप्ट पे ईमान लाना उनके बेसिक पिलर्स का हिस्सा है। यानी जैसे ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस्लाम का, उसी तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ इमाम जो है वो शिया स्कॉलर्स के नजदीक एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो हकीकतन अगर आप शिया है तो आपको इस बात पे ईमान लाना है कि आपके सबसे पहले इमाम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और उनके वंश चलता रहा और हजरत इमाम मेहदी अलैहि रिजवान आएंगे और वो हमारे इमाम होंगे। लेकिन सुन्नी स्कॉलर्स के नजदीक इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के ऊपर ईमान लाना ईमान का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ इस्लाम का एक बुनियादी इल्म जरूर है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा डिटेल में कुर्ब क़यामत की अलामतों के बारे में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन को बताए हैं। और कुर्ब क़यामत के तमाम चीजों के ऊपर ईमान लाना इस्लाम का बेसिक रुकन में से है और उन तमाम चीजों में से एक हजरत इमाम मेहदी अलैहि रिजवान भी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लौट के आना भी है, दज्जाल का आना भी है, याजूज माजूज का आना और इस तरीके से बहुत सारे दूसरे अलामतें हैं जो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये थे 3 मेजर डिफरेंसेस। कुछ माइनर डिफरेंसेस भी है, उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल सुन्नी हजरात के नजदीक वो अपने आप को इमाम मेहदी कहलवाना ही नहीं चाहेंगे, वो अवॉइड करेंगे इस खिताबत को लेने से। लेकिन शिया हजरात के नजदीक वो तो डिक्लेयर्ड इमाम है। उसी तरीके से शिया हजरात इमाम मेहदी अलैहि सलाम कहते हैं। सुन्नी हजरात के नजदीक ऐसा कोई पर्टिकुलरली कोई सफिक्स नहीं है। मैंने इस पॉइंट पे काफी रिसर्च करके इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि इमाम मेहदी के नाम के आगे अलैहि रिजवान लगाना सबसे ज्यादा सेफ है। ऑल्दो ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है, फिर भी लोग अक्सर ऑफेंड हो जाते हैं इस बात पे कि इमाम मेहदी अलैहि सलाम तुम कैसे कह सकते हो, अलैहि सलाम तो नबियों के नाम के आगे लगाया जाता है या फिर फरिश्तों के नाम के आगे लगाया जाता है। इमाम मेहदी तो ना नबी है ना फरिश्ते हैं। उसी तरीके से इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोई हजरात कहते हैं, कोई कहते नहीं आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये तो सहाबाओं के नाम के आगे लगाया जाता था और इमाम मेहदी ने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त नहीं देखे हैं तो वो सहाबा नहीं है। कुछ लोग इमाम मेहदी को सिर्फ इमाम मेहदी ही कहते हैं, तो उस पे भी लोगों को इश्काल होता है कि ये इतने डिग्निफाइड फिगर है, आप उनको सिर्फ नाम से कैसे पुकार सकते हैं। इसलिए पूरे स्टडी के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान का कहना उनके शायान शान के मुताबिक भी है और किसी को ऑफेंड भी नहीं करती है। आप किसी दूसरे अल्फाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। आइए अब हम सिमिलरिटीज के बारे में बात करते हैं। अब शिया और सुन्नी थियोलॉजी के हिसाब से सिमिलरिटीज तो बहुत सारी है, मैं चंद बेसिक सिमिलरिटीज बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में। नंबर 1, ये अहले बैत में से होंगे, यानी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ही वंश में से होंगे, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। दूसरी बात, इस बात पे किसी को भी शक नहीं है कि वो पूरे की पूरी उम्मत को मुत्तहिद कर देंगे। तीसरी बात, हर कोई इस बात से मुत्तफिक है कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान कुर्ब क़यामत की अलामत में से एक अलामत है, यानी ही इज द साइन ऑफ एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब वो आ गए हैं उसके बाद बस दुनिया खत्म ही होने वाली है, यानी उनके आने के बाद के जो इवेंट्स है वो सारे के सारी चीजें डिफाइंड है। और चौथी बात, उनके आने के बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे उनमें अक्सर चीजों में हर एक स्कॉलर जो है मुत्तहिद है। तो ये वो सिमिलरिटीज हो गई जो आपको तमाम उम्मत मुस्लिमा में पाई जाएगी। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, ये आपको कैसे अफेक्ट करता है। अब मेरे इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो डिस्कशन हमने किया है ये आपको अफेक्ट नहीं करता है। इमाम मेहदी अलैहि रिजवान शिया होंगे या सुन्नी होंगे ये आपको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है। इस डिबेट को आप छोड़ दीजिए, दिल से इस बात को निकाल दीजिए। अब आते हैं कॉल टू एक्शन पे। आपको तैयारी करनी है
और ये तैयारी आपको ना आज से करनी है, अपनी जिंदगी पे लाना है, अपने बच्चों की जिंदगी पे लाना है। और ये तैयारी जो है ना अपनी लाइफ के प्रायोरिटीज को सेट करते हुए करना है। उन यहूदियों की तरह हमें इमाम मेहदी का इंतजार नहीं करना है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 100 साल पहले उनको पता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। यसरिब के यहूदी आके तो यसरिब में बसे ही इसलिए थे कि उनको इस बात का अंदाजा था, उनकी किताबों में ये चीज मेंशन था कि एक शख्स आएगा और वो नबी होगा और वो शख्स हिजरत करके यसरिब में आएगा। यसरिब यानी आज का मदीना मुनव्वरा, उस जमाने में उसको यसरिब कहा जाता था। तो यहूदियों की जो एक पूरी गांव आके बसी थी मदीना में, वो सैकड़ों साल पहले सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बैत लेना चाहते थे। हम वो लोग हो जो नबी को फॉलो करें, हम वो लोग हो जो नबी के सहाबा बने, हम वो लोग हो जो सबसे पहले ईमान लाने वालों में से बने। लेकिन जैसे ही मदीना के यहूदियों को ये पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खानदान में पैदा नहीं हुए बल्कि वो तो मक्का मुकर्रमा में पैदा हो गए, वो तो बनी इस्माइल में से पैदा हो गए, अब उन्होंने हर चीज को जानते हुए भी अल्लाह के रसूल को फॉलो नहीं किया बल्कि उनके सामने कांटों की राह बिछा के रख दी। हमें ऐसा इंतजार नहीं करना है कि पूरी जिंदगी हम इमाम मेहदी के आने का इंतजार करते रहे और जब वो आ गए तब हम नुक्स निकाल रहे हैं कि क्यों हम उनको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और क्यों हमसे वो अलग है। हमें तो मजा आता है डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने में, हम उनसे अपने आप को डिफरेंस फाइंड आउट करके इस महरूमियत में ना रह जाए। याद रखिए इमाम मेहदी अलैहि रिजवान आएंगे, 7 साल वो इस दुनिया में रूल करेंगे और यही वो 7 साल होगा जिसमें दज्जाल भी आएगा। और दज्जाल अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा ट्रिब्यूलेशन है, सबसे बड़ी आजमाइश है। ये इतनी बड़ी आजमाइश है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है, बताया है कि ऐसा ऐसा शख्स आएगा जो दज्जाल होगा, जो इस तरीके से दुनिया में आफत मचाएगा। वो चीज फेस होना है। अगर इमाम मेहदी आ जाए तो उनकी छतरी के नीचे जल्द से जल्द पहुंच जाना है क्योंकि पीछे पीछे दज्जाल भी आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि आपको आपके लाइफ में प्रायोरिटी कैसे सेट करना है, आपको अपना थॉट प्रोसेस कैसे चलाना है। यूट्यूब में वीडियोस की कमी नहीं है और ये वीडियोस हमेशा आपको सही रास्ते नहीं दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि आप स्कॉलर से जुड़िए, उलमा इकराम से जुड़िए और उलमा इकराम से जुड़ने का एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इस्लाही मजलिस। इस्लाही मजलिस एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस ग्रुप में आप किसी भी तरह का कोई भी सवाल इस्लाम के मुतालिक पूछ सकते हैं और आपको उन सवालात के जवाबात ऑथेंटिक स्कॉलर्स ही देते हैं। इमाम मेहदी से मुतालिक या कुर्ब क़यामत के तमाम अलामतों से मुतालिक अगर आपने कोई भी सवाल पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के टीम में लेडीज की क्या पार्टिसिपेशन रहेगी जब वो आ चुके होंगे, तो यहाँ पे दिए हुए लिंक को आप क्लिक कीजिए और आप जानिए कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के टीम में लेडीज कौन होंगे और उनकी क्या क्या क्वालिटीज होंगी। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त और अहबाब में इसको खूब शेयर कीजिए और एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम माइंडसेट डेवलप कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।